और अभी राष्ट्रपति भवन जा करके राष्ट्रपति जी का भी आशीर्वाद मिला। तो ये सिर्फ मेरी ही नहीं, ये भारत देश का विडंबना है कि अच्छे अच्छे टैलेंट्स को आप देखेंगे। कभी कोई बड़ा खिलाड़ी, सुनने में है कि ओलंपिक का कोई खिलाड़ी कोई नौकरी कर रहा है, नौकरी भी क्या दिहाड़ी मजदूरी करते हुए पाया गया। ऐसे बहुत सारे जन्य हमार जा नाम হয়েছে, आज हमार जिलार नाम, हमार झारखंडेर नाम শুধু দেশে নেই বিদেশ থেকেও গেছে। তার জন্য আমার নমস্কার, জোহার। আমি খগেন চন্দ্র মাহাতো আর আপনারা দেখছেন রাঢ় বাংলা। আমাদের সাথে এখন মজুদ আছে অমিত মোদক, যিনি মার্শাল আর্টে এমন একটা রেকর্ড বানাইছেন। আর রেকর্ডটা হচ্ছে 1 সেকেন্ডে 10 পঞ্চ মারার। আগের রেকর্ড ছিল ব্রুসলির, যে 1 সেকেন্ডে 9 পঞ্চ মারিছে। আর অমিত মোদক যে আছে, ইনার বায়োপিক ফিল্ম বনেছে ইনার নামে, অমিত মোদক ফলোইং দ্য লেজেন্ড। আর ইনি আমার সাথে এখন উপস্থিত আছেন। আর ইনার সাথে জানবার পরে প্রয়াস করব যে ইনার যে ক্যারিয়ার যে শুরু হয়েছে, কেমন ভাবে শুরু হয়েছে, কত কষ্টকারক জীবন বিতাইছে, আর এই জায়গায় যে পৌঁছেছেন ইনার কাছে জানবার প্রয়াস করব, বা আপনারও জানকারি দিবার প্রয়াস করব আমাদের দর্শকরাকে। সর্বপ্রথম আমাদের চ্যানেলে আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত আছে, রাঢ় বাংলা চ্যানেলে। ধন্যবাদ। আর সবাইকে জোহার আমার থেকে। আমার নাম অমিত মোদক, আর আমি মার্শাল আর্টসে लगभग 15 বছর থেকে বেশি আমি এই মার্শাল আর্টসে আছি। আর এই মার্শাল আর্টসের জন্যই আমার যা নাম হয়েছে, আজ আমার জেলার নাম, আমার ঝাড়খণ্ডের নাম শুধু দেশেই নেই বিদেশ থেকেও গেছে। তার জন্য আমার স্পোর্টসের জন্য খুব আভার। স্পোর্টসের এখানে যেমন ঝাড়খণ্ডের প্রথম বায়োপিক বনে মহেন্দ্র সিং ধোনি, দ্বিতীয় খিলাড়ি হচ্ছে আপনি, আপনার নামও বায়োপিক বনেছে একটা। তো এটাই কেমন ভাবে আপনাকে কি লাগছে, যে কি সন্দেশ যাচ্ছে এখান থেকে আপনার? অ্যাকচুয়ালি আমি যখন আমার ক্যারিয়ারটা স্টার্ট করেছি, সেই তখন আমার কাছে মানে একটু ফাইন্যান্সিয়ালি খুব অভাব ছিল। তার জন্য আমি স্পোর্টসকে চুনেছি। স্পোর্টস আমার আগের থেকে ধ্যান আছে। আর স্পোর্টস যখন আমি স্টার্ট করেছি, সেই তখন আমার কাছে মানে ফিস দিবারও পয়সা ছিল না। তার জন্য আমি শুধু 8 से 10 কিলোমিটার पैदल जाती, আর पैदल যাই করে আমি শুধু দেখছি কোচকে কি কেমন করে ট্রেনিং করাচ্ছে, আর ওনাদেরকে দেখে করে আমি ওটাকে কপি করছি। তারপরে এমনি কারবা আগে বাড়লো, যখন দেখলো কি আমি মেহনত করছি, তো 1-2 জন এসে নিয়ে আমাকে হেল্প করেছে। তারপর আমি আন্তর্রাষ্ট্রীয় স্তরে ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপ, ন্যাশনাল লেভেল, ইন্টারন্যাশনাল লেভেল খেলেছি। আমার নামে একটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড আছে 1 সেকেন্ডে 10 পাঞ্চেস মারার। তারপরে মানে আমি শুধু মার্শাল আর্টস ছেড়ে করে তীরন্দাজিও খেলেছি, কেন কি বহুত প্রবলেম চলছিল ওই টাইমে, মানে মার্শাল আর্ট অত সাপোর্ট পাওয়া যাচ্ছিল না। তীরন্দাজিও ভালো পারফরমেন্স ছিল, কিন্তু কি হয়েছে কি ওখানে কিট খুব কস্টলি। পারফরমেন্স ভালো থাকার পরও তীরন্দাজি মানে কিট আমি এফোর্ড করতে পারলাম না। তারপর আমি আবার রিটার্ন এসেছি মার্শাল আর্টসে। তারপর আমি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ক্রিয়েট করেছি। আমার যে স্ট্রাগলটা আছে, এই স্ট্রাগলটা থেকে আমি যে নিজের ক্যারিয়ারকে আগে বাড়িয়েছি, ওটার জন্য মানে যে নতুন জেনারেশনে আসছে স্পোর্টস পার্সনে, ওদেরকে মোটিভেশন মিলে, তার জন্য আমার এই বায়োপিক হয়েছে। আর এই বায়োপিকটা এখন তো 2টা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড, একটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাওয়া গেছে। এই যে আপনার রেকর্ড যে বনেছে 1 সেকেন্ডে 10 পঞ্চ, এই রেকর্ডটা কতদিন আগে আপনি বনেছেন, আর কোন জায়গায় এই রেকর্ডটা আপনি কায়েম করেছিলেন? এই রেকর্ডটা 2019 আমার রেকর্ড ব্রেক হয়েছিল। আগে আমাদেরকে ডেমো দিতে হয়, তারপরে ওখানে দিল্লি গিয়ে করে আমাদেরকে ওখানে পারফরমেন্স করার ছিল, সব রেকর্ড তাই হয়েছিল। তারপরে 2019 আমি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বানিয়েছি। তারপরে ऑफर হয়েছিল फिल्मेर জন্য कि आपका एक डॉक्यूमेंट्री बनाया जाएगा, जिसमें बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि एक ऐसा खिलाड़ी जो बिना कोच के अपना करियर को स्टार्ट करता है और एक इस लेवल पर जाता है कि लोगों को उससे मोटिवेशन मिले। क्योंकि अभी का जनरेशन में क्या है कि बच्चे ज्यादातर खेल को छोड़ करके मोबाइल टीवी पर लगे हुए हैं। तो मेरा ऐसा था कि आने जाने के लिए भी मुझे सोचना पड़ता था, फाइनेंशियली इतना प्रॉब्लम था। तो मैं 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल जाता था, कड़ी धूप में जाता था। बहुत सारे कोचेस जानते हैं, और इस बात का जिक्र मेरे फिल्म में भी किया गया है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है, कितना मेहनत करके मैंने अपने आप को साबित किया कि हम लोग जैसा एक मिडिल क्लास का लड़का भी अगर ठान ले तो कुछ कर सकते हैं।
इसी के बाद फिल्म का निर्णय लिया गया और इसी के साथ में बहुत सारा धीरे धीरे कारवां बढ़ा। मुझे द ग्रेट खली से भी अवार्ड मिला स्पोर्ट्स में अच्छा करने के लिए। और मेरे ही फिल्म का भी 2 इंटरनेशनल अवार्ड, 1 नेशनल अवार्ड मिला। उसके साथ में अभी हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड में एज ए सेक्रेटरी झारखंड में काम कर रहा हूँ। ये स्काउटिंग में भी मैं आपको बता दूं कि लगभग हिंदुस्तान स्काउट्स में 24 साल से बहुत सारे सेक्रेटरीज बने हैं, लेकिन कोई भी अभी तक राज्य पुरस्कार नहीं करा पाया था। अभी हाल फिलहाल में मेरे 3 बच्चों ने राज्य पुरस्कार हासिल किया और अभी राष्ट्रपति भवन जा करके राष्ट्रपति जी का भी आशीर्वाद मिला। तो ये एक मेरा एक शुरुआत है कि जिस तरीके से मैंने मेहनत किया है और मेरे वजह से और भी लोगों को कुछ फायदा हो, तो मेरी ये कोशिश है कि स्पोर्ट्स के माध्यम से जहां तक मेरा होगा सहयोग मैं करूंगा आगे भी। द ग्रेट खली जो है, उनसे कब आपको पुरस्कार मिला है? ये 2022 को एक इवेंट के दौरान उनसे अवार्ड मिला मुझे स्पोर्ट्स के लिए, अच्छा काम करने के लिए झारखंड में और मार्शल आर्ट्स को आगे ले जाने के लिए। क्योंकि मैं जब अपना करियर का शुरुआत किया था स्पोर्ट्स में, मार्शल आर्ट्स में, मेरे साथ कई सारे बच्चे ऐसे थे जो स्पोर्ट्स में मार्शल आर्ट्स को चुने थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मजबूरी के कारण, टैलेंट होने के बावजूद वो लोग आज कुछ और प्रोफेशन पकड़ लिए, कोई नौकरी कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स छोड़ दिया है। तो मार्शल आर्ट्स को मैंने मेरा भी लाइफ में परेशानी है, लेकिन मार्शल आर्ट्स को मैं उस टाइम से लगातार 15 साल से मैं कंटिन्यूअसली चला रहा हूँ, मार्शल आर्ट्स को आगे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ये मार्शल आर्ट्स जो है हमारा इंडिया से ही जनरेट हुआ था और ये आज विदेशों में प्रचलित है। तो मेरा ऐसा मानना है कि क्यों ना हमारा ही जो चीज है, हमारा जो देश की धरोहर है मार्शल आर्ट, इसको हम लोग प्रमोट करें। आज के डेट में लड़कियों को भी हम लोगों ने लगभग 2 से 3 हजार ऐसी लड़कियों को जिनके पास पैसे नहीं थे, मैंने उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग करवाया। झारखंड में ही नहीं, अलग अलग स्टेट्स में जाकर के मैंने ट्रेनिंग कराया और मार्शल आर्ट्स के वजह से आज सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों से भी कोचेस का मुझे बधाई है कि आपने मार्शल आर्ट्स को प्रमोट किया। और आज सिडनी से, अफ्रीका से और भी कई कई देशों से लोगों का प्रशस्ति पत्र मिला कि आपने मार्शल आर्ट्स को बढ़ाया है, उनका भी मुझे सहयोग मिलता रहा है बीच बीच में। वो जब वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनाया टेंट पंच का, तो उस समय विदेशों से भी आपको बधाई पत्र आए थे और बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ था। तो विदेश का जो कोच है उनसे कैसे परिचित हुआ आपका? मार्शल आर्ट्स के ही जरिए हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद उनको पता लगा। और वैसे भी जब मार्शल आर्ट्स में मैं प्रमोशन कर रहा था, मार्शल आर्ट्स जगह जगह सिखा रहा था, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे जिसमें विदेशों से भी कोचेस आए थे। तो लगभग 5-6 साल से सबसे जान पहचान है और सिर्फ 6-7 कंट्री के अभी कोचेस से जान पहचान है। अभी यूरोप के टिबोर बेगुली हैं जो ग्रैंड मास्टर है मार्शल आर्ट्स के, उन्होंने हॉलीवुड के कुछ एक्टर्स को भी ट्रेनिंग कराया है। अभी मैं उनसे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा हूँ मार्शल आर्ट्स का। कुछ मेरा 1-2 प्रोजेक्ट्स आने वाला है फिल्म का, उसको लेकर। हॉलीवुड के 1-2 एक्टर्स भी हैं जो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। चूंकि मैं झारखंड से हूँ, झारखंड का मैं लोकल बंदा हूँ, यहाँ लोग जिसको देखते हैं टीवी में हॉलीवुड एक्शन स्टार्स को, अगर झारखंड सरकार मुझे मदद करे तो मैं यहाँ के लोकल बच्चों के लिए, जो यहाँ जैसे आप राड बंगला चला रहे हैं, यहाँ के जो एक्चुअल में राड़ी लोग हैं, जो यहाँ के जो जनमानस में ढले हुए हैं, उनको हम लोग चाह रहे हैं कि हॉलीवुड से ला करके झारखंड में एक बार कम से कम 2 से 3 दिन के लिए भी होने से फ्री में सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग में उनसे दूं जिनको ये आइडल मानते हैं, जो भी मार्शल आर्टिस्ट हैं झारखंड के। तो इसके लिए मुझे झारखंड सरकार का कुछ सहयोग चाहिए और अगर सहयोग मिल जाता है तो हम लोग इसको बड़े पैमाने पर मार्शल आर्ट्स को विदेशों से ला करके झारखंड पर हम लोग इसको बढ़ाएंगे। अच्छा, चलिए, जैसे झारखंड सरकार की आप बात कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने जैसे रिकॉर्ड बनाया उसके बाद सरकार के द्वारा आपको कुछ मदद मिला या नहीं मिला, कि माने क्या कारण है जो अभी तक आपका जो स्थिति ऐसा है? आप जैसे सुने कि कोचिंग माने मार्शल आर्ट का आप क्लास चला रहे हैं, तो अगर सरकार से हेल्प मिलती तो ये बड़ा पैमाने में हो सकता था। तो क्या आपने पहल नहीं किया कि झारखंड सरकार से कुछ आवेदन करें या कुछ? देखिए, सिर्फ मेरी ही नहीं, ये भारत देश का विडंबना है कि अच्छे अच्छे टैलेंट्स को आप देखेंगे, कभी कोई बड़ा खिलाड़ी, सुनने में है कि ओलंपिक का कोई खिलाड़ी कोई नौकरी कर रहा है,
नौकरी भी किया, दिहाड़ी मजदूरी करते हुए पाया गया। ऐसे बहुत सारे खबर हैं। तो यहाँ पर अप्रोच के ऊपर ही सारा काम होता है। आप यहाँ जितना भी काम कर ले, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था कि इतना जो मेरा अचीवमेंट है इसके लिए देश में विदेशों से प्रशस्ति पत्र मिलने लगा, लेकिन झारखंड सरकार से अभी तक कुछ नहीं। आश्वासन मिला, कुछ पॉलिटिशियंस का प्रशस्ति पत्र भी मिला मुझे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़िए, और फाइनेंशियली ऐसा कुछ मिला नहीं। लेकिन मैंने अपना जो अचीवमेंट के बाद मैंने अपना कारवां को बढ़ाया, और सिर्फ झारखंड ही नहीं, अब बहुत सारे राज्य से भी मुझे सपोर्ट मिल रहा है। धीरे धीरे लगता है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि उनको भी ये चीजों को समझ में आएगा। जब विदेशों के लोग यहाँ आएंगे, हमारे झारखंड के कल्चर को, हमारे भारत के कल्चर को विदेश तक, आज ऐसा था कि झारखंड में जमशेदपुर का नाम, सरायकेला जिला का नाम विदेशों में अन्य खेलों के लिए जाना जाता था। झारखंड में क्रिकेट को इसलिए जाना जाता, महेंद्र सिंह धोनी के लिए, तीरंदाजी को दीपिका कुमारी के लिए जाना जाता था। मार्शल आर्ट्स में हमारे यहाँ पर, मैं नहीं कहता हूँ कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, मैं ही बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, और भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी, बहुत अच्छे अच्छे कोचेस है। कुछ ना कुछ गुटबाजी कहिए, कुछ ना कुछ साजिश संजिश के वजह से मार्शल आर्ट्स में वो नाम, आज आप बता दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर पूछा जाए कौन है झारखंड से, तो कौन मार्शल आर्टिस्ट है, तो नाम तो बहुत है, लेकिन किसी को ये नाम नहीं मालूम था। मेरा एक पहल था कि मार्शल आर्ट्स को मैं कैसे बढ़ाऊं, आगे लेकर के जाऊं। आज कहीं ना कहीं मेरे एक छोटे से प्रयास से सरायकेला जिला का नाम, यहाँ की झारखंड की धरती का नाम यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, सिडनी के लोग जानने लगे हैं। वो मुझे बधाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड, सरायकेला जिला का भी नाम हो रहा है। तो धीरे धीरे ऐसा भी दिन आएगा कि लोग यहाँ मार्शल आर्ट्स में झारखंड का नाम और अच्छे तरीके से मैं लेकर के जाऊंगा। अच्छा, चलिए लास्ट और आखिरी सवाल, जो झारखंड के महिला बच्ची, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे, और जो आपके क्लास में आते हैं कैसे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपके स्टूडेंट बढ़े, और इसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लगातार कोरोना से पहले और कोरोना के बाद अब तक मैंने लगभग 3000 ऐसी लड़कियों को जो जरूरतमंद है, जिनके पास पैशन, उनको मैंने सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग कराया, और अवेयरनेस के तौर पर, और कंटिन्यूसली जो हमारा टायो कॉलोनी स्थित हमारा अरुणोदय क्लब है, वहाँ पर हम लोग क्लासेस चला रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं, मेरे स्टूडेंट हैं। कुछ का तो अभी गवर्नमेंट्स में जॉब भी हो गया है। तो हम लोगों ने जो प्रयास किया था कि हमारे रहते हुए हम लोगों से जितना पॉसिबल होगा, जो जरूरतमंद बच्चे होंगे, सिर्फ झारखंड ही नहीं, कहीं भी किसी भी राज्य का हो, आज हमारा टीम जो है सिर्फ झारखंड नहीं और भी 7-8 राज्य में काम कर रही है। जिनको जहाँ जरूरत पड़ता है हम लोग उनको मदद करते हैं, और उसको अगर कैरियर के तौर पर आगे में लेकर के जाना होता है स्पोर्ट्स को, तो हम लोग उसका भी तैयारी करवाते हैं बच्चों को। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपको, और इसी तरह के खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ, और आप देखते रहे राढ़ बांग्ला। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं खगेन चंद्र महातो अपने सहयोगी के साथ।